Hi guys, good morning. So I hope I am audible to everyone. So we are going to discuss some questions related to the topics that we have discussed so far from Excel portion. तो अगर अभी तक आप लोगों ने Excel start नहीं किया है तो now it's high time to work on your Excel skills as well if you are preparing for September-November 2024. तो आज की क्लास में मैं आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कवर करवा दूंगी which have been tested in the past years plus which are expected to be tested in coming years as well. And आप क्या कर सकते हैं आज की क्लास के बाद जो remaining questions आपके रह जाएंगे from these particular chapters you can just practice on your own. और अगर कुछ भी doubts रहते हैं तो feel free to put it on portal. So I will try to cover questions related to utility theory, questions related to efficient portfolio and measures of investment risk which can be tested in Excel. So abhi I have scheduled 4 to 5 questions discussion. So let's see how much time allows us to discuss. So let's start with the first question of the day. थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे because we have multiple questions to discuss. So we will just try to make it fast. So I hope the screen is visible to everyone. So first question of the day. It's an easy question. बहुत ज़्यादा time नहीं लगेगा आपका इस question में. An investor is uh, an investor is seeking to maximize their expected utility by considering the expected return E and standard deviation sigma of their portfolio. In E minus sigma space, the investor lines of constant utility are given by the formula ER comma sigma 1 by 2B minus square root of R square minus sigma square. For the investor, B is 5 by 3. R is constant set by the investor and could be 0.15, 0.20, 0.25. Calculate the expected returns using sigma in the range 1% to 10% with intervals of 0.5% for each of the three possible values of R. देखो पहले क्या बोला उसने इन्वेस्टर इज सीकिंग टू मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी बाय कंसीडरिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न ई एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ऑफ देयर पोर्टफोलियो. अब जो उनके यूटिलिटी है वो उसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है 1/2b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर और b आपको 5/3 गिवन है और वो कह रहा है आर की तीन वैल्यूज हो सकती है 0.15 0.20 0.25. अब वो आपसे बोल रहा है आर की तीन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग और सिग्मा की डिफरेंट वैल्यूज लेकर सिग्मा को 1% फिर 1.5% फिर 2% 2.5 3 3.5 एंड सो ऑन बिकॉज इंटरवल हमें कितने का रखना है 0.5% का. तो सिग्मा की ये वैल्यूज और आर की ये तीन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर ईच ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर. तो पहले तो आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि मुझे कैसे टेबल प्लॉट करना पड़ेगा. मैं एक तरीका मैं आपको बता सकती हूँ. आप सिग्मा एक कॉलम ले लो आप सिग्मा का, ठीक है, सिग्मा 1 1.5 2 एंड सो ऑन और तीन कॉलम्स ले लो आप आर के आर 0.15 0.30 0.25. अपना फॉर्मूला पुट करो ड्रैग करो एंड यू कैन गेट योर वैल्यूज. नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं. फॉर दिस इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ एनी पोर्टफोलियो with expected return E and standard deviation sigma is given by this. Verify that each of your E sigma pairs produces a constant utility. Next, plot three lines of constant utility in E minus sigma space. Next, explain how your plot in part 3 shows utility function exhibits non-satiation as well as risk aversion. तो 19 मार्क्स का एक इजी क्वेश्चन आपको गिवन है.
मैं आपको 10 मिनट्स दे रही हूँ जस्ट टू प्लॉट रफ. मुझे अभी प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं करना. आप मुझे एक रफ प्लॉट करके भी दे दोगे तो भी चलेगा. सो 10 minutes फॉर द सेम एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग. It is not at all a difficult question. If this type of question comes in exam, आप पूरे 19 में से 19 स्कोर कर सकते हो इस क्वेश्चन में. 5 more minutes for you to perform on Excel.
Guys, wrap up fast. Now let me just quickly take you through what examiner wants from us. यही हमने करना था कि सिग्मा के डिफरेंट वैल्यूज ली, एक कॉलम आपने सिग्मा का बना लिया 1, 1.5, 2, 2.5, लेकिन ये आप मैनुअली इनपुट नहीं करोगे, बस आपको यहाँ पर भी फॉर्मूला ही लगाना है। 1 पे 0.5% का इंक्रीज देना है हर बार, ठीक है, दे दिया। उसके बाद हमने आर के डिफरेंट वैल्यूज ले ली 0.15, 0.2, 0.25। बी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 5/3, हमें फॉर्मूला क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, उस फॉर्मूला का बस हमने यहाँ पर अप्लाई किया, दैट्स इट। सो 1/2 into E2 minus square root of D5 square minus C7 square। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया है, नथिंग एल्स। सिंपल फॉर्मूला ड्रैग करो एंड गेट योर वैल्यूज। मतलब ये चीज तो कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए आप में से जिसकी ये वैल्यूज करेक्ट नहीं आ रही हो। जस्ट चेक, आर यू गेटिंग दीज वैल्यूज? Your average of basically first row should be first column should be 16.37, average of second column 10.98, average of third column 5.78. We have just given the values, we have been given the values of R1, R2, R3, B given है, formula given है और sigma की different values given है, formula apply किया, that's it। तो अगर आप मार्किंग समझो तो देखो कैसे मार्किंग दे रहा है, वो कह रहे हैं 2 मार्क्स इफ करेक्ट, 1 मार्क अगर एक मिस्टेक है और वो मिस्टेक आपकी कंटिन्यू हो रही है तो भी वो 1 नंबर ही काटेगा, मतलब 1 नंबर ही देगा। और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स, या फिर अगर एक से ज्यादा आपकी मिस्टेक्स हैं तो 0 मार्क्स। तो ये एक पार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें यूटिलिटी को ये चेक करने के लिए बोला था कि बताओ कि यूटिलिटी कांस्टेंट आ रही है या नहीं आ रही। अब ये वैल्यूज इन्होंने वहां से ड्रॉ कर लिया, कुछ नहीं किया, सिर्फ ये वैल्यूज वो वहां से ले आया, आपके ऊपर है, आप उसी टैब में भी परफॉर्म कर सकते हो। अब आपने अगेन यूजिंग द फॉर्मूला तीनों केसेस में यूटिलिटी निकाली और हमें ये प्रूव करना था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सिग्मा माय यूटिलिटी शुड कम आउट टू बी सेम फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आर। तो इज इट सेम? यस, इट इज सेम। अब थर्ड पार्ट में इसके क्या करना था, हमें चार्ट ड्रॉ करना है। तो ये आपकी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग और सिग्मा को कॉरेस्पॉन्डिंग आपने अपना लाइन चार्ट ड्रॉ कर लिया। So sigma के corresponding 3 different values u1, u2, u3, insert chart and you have drawn your line chart। बस आपको ये ध्यान रखना है कि you are just labeling your chart correctly। नीचे सिग्मा आएगा, ऊपर expected return आएगा and this line shows that how is expected utility changing in E minus sigma space। दिस वॉज वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा सिर्फ आपको स्टार्ट एक इजी क्वेश्चन से करवाने का ये रीजन था कि थोड़ी मोटिवेशन मिले कि जो हम लोग सोचते हैं कि एवरी टाइम CM2B इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, ऐसा नहीं है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से रीड कर रहे हो और आपको तरीका आता है, इसमें तो अगर किसी ने मान लो चैप्टर 2 नहीं भी पढ़ा तो भी वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। लास्ट पार्ट में वो आपसे पूछ रहा था बताओ कि नॉन सिटेशन और इसके वर्जन कैसे हैं। अब आपको पता है नॉन सिटेशन का मतलब क्या है कि इन्वेस्टर प्रेफर्स मोर टू लेस, और रिस्क एवर्जन का मतलब इन्वेस्टर इज रिस्क एवर्स। नाउ व्हेन इन्वेस्टर्स प्रेफर मोर टू लेस, दैट मीन्स बेसिकली हमें ये बताना है कि इन्वेस्टर इज बेसिकली प्रेफरिंग अ पोर्टफोलियो व्हिच इज ईदर गिविंग हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है दिस इज प्रिजर्व बिकॉज अ पोर्टफोलियो विद ग्रेटर एक्सपेक्टेड रिटर्न बट सेम स्टैंडर्ड डेविएशन हैज अ हायर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। यू कैन चेक आउट दिस पोर्टफोलियो, this giving you high level of utility। So same expected return, higher expected return but same standard deviation gives us higher
expected utility. An investor is risk averse also because increased standard deviation means greater expected return to maintain same expected utility. आपको ग्राफ से भी क्लियरली ये चीज दिख रही है. नॉन सिचुएशन एंड रिस्क एवर्जन इज क्लियरली गेटिंग एग्जिबिटेड फ्रॉम ग्राफ एज वेल. सो एक्सपेक्टेड रिटर्न इंक्रीज और स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्रीज. फिर अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन सेम रख रहे हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ा रहे हैं तो हमारी यूटिलिटी बढ़ रही है. और अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम रख रहे हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन कम कर रहे हैं तो भी हमारी यूटिलिटी बढ़ रही है. तो दिस इज व्हाट इज एग्जिबिटेड बाय नॉन सिचुएशन एंड रिस्क एवर्जन. तो दो फॉर्मूले आपको क्वेश्चन में गिवन थे. सिर्फ एक क्या ट्रिक थी इस क्वेश्चन में कि हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि हमें सिग्मा को 0.5 इंटरवल्स में स्प्रेड करना है और आर की तीन वैल्यूज को डिफरेंट चार कॉलम्स बेसिकली बनाने हैं और अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है और चार्ट बनाना है और चार्ट की बस आपने इंटरप्रिटेशन करनी है कि कैसे नॉन सिचुएशन और इसके वर्जन एग्जिबिट हो रहे हैं. तो नॉन सिचुएशन के लिए ऑलवेज हैव टू शो कि हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न इज प्रेफर्ड टू लेस एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड विद इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड रिटर्न योर यूटिलिटी मस्ट इंक्रीज. एंड रिस्क के वर्जन के लिए आपको ये बताना है बेसिकली दैट इन्वेस्टर प्रेफर्स लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन. दैट मींस यूटिलिटी इज मोर इन केस ऑफ लो स्टैंडर्ड डेविएशन. Now, any doubts in this question to any of you? This was a good question from exam perspective. Let's move to next question. Next question. An investor has 1,000 available to invest in one of the two assets A or B. You have been provided with cumulative 1-year distribution of returns for each asset in the Q3 data worksheet. Calculate for each asset over a 1-year period the expected return, the variance of return, downside semi-variance of return. Next, plot the probability density function of the return on each asset on a chart. Next, explain how you could have determined the relationships between each asset in part 1 using only your chart and no further calculations. Next, suggest with reasons what the risk-free rate of return may be. अब क्योंकि अभी आपके पास शीट नहीं है तो मैं आपको डायरेक्टली ये सिखाती हूँ कि मुझे, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे सिर्फ आपको एक रफ डेमो देना है इस क्वेश्चन का. दैट्स इट, बिकॉज दिस एवरीवन कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो इसलिए मैंने आपके साथ ये शीट नहीं शेयर करी, मुझे सिर्फ आपको दिखाना था हाउ टू अटेम्प्ट. सो इन्वेस्टर हैज 1,000 अवेलेबल to invest in two assets A or B. You have been provided with cumulative 1-year distribution of returns for each asset in the Q3 data worksheet. अब हमारे पास ये देखो, ये ऐसे हमारे पास फिगर्स अवेलेबल है. रिटर्न कॉरेस्पॉन्ड रिटर्न -30% -29 सेम सो ऑन एंड दो एसेट्स का CDF गिवन है हमें. So these are the values which are provided to you. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट फॉर ईच एसेट ओवर अ 1-year पीरियड एक्सपेक्टेड रिटर्न. नाउ हाउ विल आई कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द गिवन डेटा? कॉरेस्पॉन्डिंग रिटर्न गिवन है और CDF गिवन है. अगर मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो मुझे PDF चाहिए सबसे पहले, बिकॉज मेरे पास रिटर्न है और कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है. तो रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल कैन हेल्प मी टू गेट माय एक्सपेक्टेड रिटर्न. सो बस एक कैच है, कभी भी आपको कुछ भी कैलकुलेशंस को करने के लिए बोलता है और आपको CDF गिवन है तो यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू PDF टू गेट योर वैल्यूज. सो ये मेरा रिटर्न गिवन था, मैंने PDF निकाल लिया. CDF से PDF कैसे आएगा? बेसिकली डिफरेंस ऑफ द टू प्रोबेबिलिटीज, सो B4 - B3 एंड सो ऑन.
फिर आपने क्या निकाला, मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। अब मैंने हर एक केस के लिए रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, ठीक है। तो व्हाट विल बी माय मीन नाउ, यही होगा मीन। वेरिएंस निकालने के लिए अब आपको क्या करना है, देखो वेरिएंस निकालने के लिए ऑब्वियसली वी शुड जस्ट चेक आउट द फॉर्मूला वेरिएंस। सो समेशन, अगर मैं x बेसिकली समेशन xi इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से अगर हमें मीन आ रहा है, तो मुझे रिटर्न का स्क्वायर इनटू पीडीएफ चाहिए, और फिर रिटर्न का स्क्वायर इनटू पीडीएफ को मुझे मीन से माइनस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट माय वेरिएंस। तो पहले तो रिटर्न का स्क्वायर इनटू पीडीएफ करते हैं, तो वो सेम रहेगा रिटर्न स्क्वायर इनटू पीडीएफ। अब वेरिएंस कैसे निकलेगा एक्चुअली में, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। सो वेरिएंस वुड बी सम ऑफ दिस। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, बिकॉज 90% पेपर में वो मीन और वेरिएंस निकालने के लिए बोलता ही बोलता है। तो मीन के लिए इट्स सिंपल रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, वेरिएंस के लिए रिटर्न माइनस एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। तो सेम चीज जो हमने एसेट ए के लिए करी है, यही सेम चीज हम एसेट बी के लिए पीडीएफ निकाला, रिटर्न इनटू पीडीएफ निकाला, रिटर्न माइनस मीन का स्क्वायर इनटू पीडीएफ एंड रिटर्न स्क्वायर इनटू पीडीएफ। अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है डाउन साइड सेमी वेरिएंस ऑफ रिटर्न। डाउन साइड सेमी वेरिएंस ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है, मैं यहाँ पर कर रही हूँ E10 से E42 और मैंने यहाँ करा E10 से E69। बेसिकली डाउन साइड सेमी वेरिएंस क्या कह रहा है कि मुझे सिर्फ उस पर्टिकुलर वैल्यू से नीचे वैल्यूज चाहिए, इसीलिए मुझे पूरा सम निकालने की जरूरत नहीं है। तो इट इज सेम एज दिस बट विद अ लिमिट एक्सपोज। क्लियर, क्योंकि मेरा मीन यहाँ पर 3% है, तो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास मैक्स वैल्यूज 2.5% और उसके बाद 3.5% है, तो मैंने 2.5% का मैक्स अपना सम ले लिया, मैं उससे नीचे नहीं जाऊंगी डाउन साइड सेमी वेरिएंस ऑफ रिटर्न। सेम थिंग फॉर एसेट बी। सो कैलकुलेट फॉर ईच एसेट। अब देखो 14 मार्क्स का अगर वो आपको ये क्वेश्चन दे रहा है, तो इसमें क्या डिफिकल्टी है, 14 मार्क्स 1000 रुपीज अवेलेबल थे, आपको सीडीएफ दोनों एसेट्स का गिवन था, सीडीएफ से हमने पीडीएफ निकाला, पीडीएफ से हमने कॉरेस्पॉन्डिंग रिटर्न से मल्टीप्लाई करके एक सम करके एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया, फिर उस जो भी हमारे पास वैल्यूज आई हैं उनको मीन से माइनस करके स्क्वायर करके इनटू पीडीएफ करके वेरिएंस निकाल लिया, और मैक्स मीन तक लेकर अपना डाउन साइड सेमी वेरिएंस निकाल लिया। नेक्स्ट कह रहा है प्लॉट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रिटर्न ऑन ईच एसेट ऑन अ चार्ट। अगेन वी जस्ट सपोज ये मेरा रिटर्न है और ये उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पीडीएफ्स है जो हमने वहां पे डिफरेंस से कैलकुलेट करे थे। आपको बस ये पीडीएफ्स को चार्ट बना, आपको नेमिंग कन्वेंशन जैसे यहाँ पे चार्ट बनाना है वो देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि यहाँ पे ऐसे नेमिंग कन्वेंशन देने की जरूरत है, नहीं देने की जरूरत। आप ऐसे सिलेक्ट करो, इंसर्ट पे जाओ, इंसर्ट अ लाइन चार्ट, दैट्स इट। नेक्स्ट कह रहा है एक्सप्लेन हाउ यू कुड हैव डिटरमिन्ड द रिलेशनशिप्स बिटवीन ईच एसेट यूजिंग ओनली योर चार्ट एंड नो फर्दर कैलकुलेशंस। So what is the relationship between assets using only chart and no calculations? सिर्फ एक्सप्लेन करना हमने चार्ट को। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी अगर आता है, क्योंकि उसने क्लियरली बोल दिया कि कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, दोनों चार्ट्स को एक्सप्लेन कर दो। एसेट ए इज ब्लू कलर, एसेट बी इज ऑरेंज कलर, तो ए ऐसे पीक जा रहा है इस टाइम पर,
एक कांस्टेंट से ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है, फ्लैट रेट है, उसके बाद पीक करता है। एसेट बी का पहले रिटर्न ज्यादा होता है ए से, फिर धीरे धीरे वो बी से डिक्लाइन करना स्टार्ट होता है, अल्टीमेटली फिर उसका ए से बढ़ जाता है। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू एक्सप्लेन. So in your own words, you can just explain it. Suggest with reasons what the risk-free rate of return may be. देखो 6 मार्क्स में ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा उसने, सिर्फ रिलेशनशिप जिसमें आपको दोनों ग्राफ्स को बस समझाना है कि यहाँ पे वाइड हो रहा है, यहाँ पर पीक नॉमिनल है, यहाँ पे स्क्वीड पॉजिटिवली स्क्यूड हो रहा है या नेगेटिवली स्क्यूड हो रहा है, किस पॉइंट पर एक का रिटर्न ज्यादा आ रहा है, किस पॉइंट पे दूसरे का ज्यादा आ रहा है, दैट्स इट. नेक्स्ट है सजेस्ट विद रीजंस व्हाट द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मे बी. अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, एसेट ए इज रिस्की एसेट विद एक्सपेक्टेड रिटर्न 3%, so risk free rate must be lower than this. Asset B has much higher variance and expected return of 8%, so maybe risk free rate is around 2 to 3%, but we would need more data to say accurately. आपने चेक किया, बेसिकली हमने यहाँ से चेक करा, देखो एसेट ए का वेरिएंस कितना आ रहा है, अराउंड 0.25%, मतलब variance is there but still it's on the close to zero only. Asset B का variance is close to 1, तो मतलब asset A एक तरीके से less risky है compared to asset B, लेकिन still some variance है, तो मतलब riskiness तो attached है ये. कुछ वेरिएंस होने की वजह से उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 3% है, तो अगर मतलब बिल्कुल भी वेरिएंस नहीं होएगा तो रिटर्न डेफिनेटली 3 से कम होगा. अब कितना होगा, हो सकता है 1.5 हो, 2 हो, बट 3 से तो कम होगा. बस ये कैच आपका इस क्वेश्चन में. तो बी पार्ट के लिए यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग विद योर थिंकिंग स्किल्स. बी पार्ट इज नॉट डिफिकल्ट. अभी ऐसा कहां पर आपको लगा कि कुछ भी डिफिकल्टी आ रही है, इट्स जस्ट इट रिक्वायर्स मोर थिंकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. So only the first part of question 1. An investor has 20,000 in cash and plans to use this to purchase shares on a non-dividend paying security. The return on the shares over 1 year follows a log normal distribution with mu 8% and sigma square 3%. Investor uses the log normal distribution to generate 100 simulations of the 1 year returns on the shares over the next 3 years. These are shown in the Q1 data worksheet. Calculate using the simulation supplied the following values. Expected value of investment at the end of year 3, standard deviation of the value of investment at the end of year 3. मैं सिर्फ अभी आपको ये दिखाती हूँ कि क्या हमें डेटा गिवन है, आपको फिर उसके बाद ये सोचना है कि हमें इसमें डेटा में करना क्या है. लेट मी जस्ट शो यू द डेटा. So this is the data which is provided to you. An investor has 20,000 in cash and plans to use this to purchase shares on a non-dividend paying security. The return on the shares over 1 year follows a log normal distribution with mu 8% and sigma square 3%. Investor के पास 20,000 in cash था,
Investor plans to use this to purchase shares on a non-dividend paying security. Returns follow log normal distribution with mean 8%, sigma square 3%. Investor uses log normal distribution to generate 100 simulations of 1 year returns on the shares over next 3 years. So these are the different things which are given to you. 100 values, corresponding time T1, T2, T3. ये आपको 100 सिमुलेशंस क्वेश्चन में गिवन है. क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट यूजिंग द सिमुलेशन सप्लाइड following values: expected value of investment at the end of year 3, standard deviation of the value of investment at the end of year 3. 20,000 है investor के पास, plans to use this to purchase shares on non-dividend paying security. Return follows log-normal distribution with mean 8, sigma square 3. Investor uses this log-normal distribution to generate 100 simulations and calculate using your simulations applied expected value as well as standard deviation. तो मैं आपको आंसर दिखा क्वेश्चन का जो डेटा है सिर्फ वो दिखा देती हूँ. Now you're supposed to calculate expected value of investment at the end of year 3. Think how you will calculate it. 2 minutes. So guys, these are the values which are given to you. ठीक है, अब अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से समझना. देखो हमें बेसिकली उसने क्या निकालने के लिए बोला है, उसने कहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो इन्वेस्टमेंट की एट ईयर 3. क्यों? आपने 20,000 निकाला तो आपको आप ये नहीं पता कि 100 सिमुलेशंस है, ठीक है. आप 100 सिमुलेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कितना आएगा, तो मैं 20,000 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि वो मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 3 दे. तो हमने क्या करा, हम इसको उल्टा समझते हैं. हमने कहा 20,000 multiplied by average of all these returns that you will be getting over 100 simulations value. अब ये तो हमें चलो पता है, लेकिन अब ये एवरेज रिटर्न कैसे निकालेंगे. ये क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट Q1 डेटा बेसिकली C10 into E10. Can any one of you tell me what they have done? देखो आपके पास टाइम 1 पे
100 वैल्यूज पॉसिबल थी कि रिटर्न अच्छा क्या क्या हो सकता है, 0.833 हो सकता है, 1.213 हो सकता है, 0.913 हो सकता है। तो मैं अगर सिंपल हमारे पास ये वैल्यू होती और मैं आपसे पूछती कि 20,000 आपके पास है, 3 साल बाद आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 20,000 मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न इन द फर्स्ट ईयर multiplied by return in the second year multiplied by return in the third year। ये आपकी एक वैल्यू आप मुझे दे देते 15797। अब आपसे वो ये वैल्यू नहीं चाह रहा है, आपसे वो कह रहा है कि रिटर्न की एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है टाइम 1 पर, टाइम 1 पे रिटर्न की 100 वैल्यूज पॉसिबल है, टाइम 2 पे भी रिटर्न की 100 वैल्यूज पॉसिबल है, टाइम 3 पे भी रिटर्न की 100 वैल्यूज पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, हमने कहा चलो तीनों वैल्यूज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालकर एक बार सिंगल सिंगल वैल्यू ले आते ओवर 100। तो सिमुलेशन किया हमने अपना, सिमुलेशन है 1 to 100, हमारे पास हमारे तीन प्रोडक्ट्स की मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई। अब ये एक सिंगल वैल्यू आ गई, लेकिन अभी भी मेरे को तो एक रिटर्न चाहिए। अब वो एक रिटर्न क्या होएगा, बेसिकली एवरेज ऑफ दिस एंटायर 100 वैल्यूज। तो हमने क्या किया, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज ऑफ C3 to C102। डू दिस कैलकुलेशन गाइस। अब मैं आपको यहाँ पर 100 सिमुलेशंस दे दूं या 1000 सिमुलेशंस दे दूं, अल्टीमेटली ऑन आंसर करने का तरीका इज सेम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा था हमारा, बस इसमें हमें फर्स्ट पार्ट ही करना है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईयर। मैंने आपको बोला ना कि एक्सपेक्टेड वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना वो हर क्वेश्चन मतलब हर पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा है ही है। तो जब हमें तीन डिफरेंट वैल्यूज गिवन थी, हमने तीन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू निकाली अपना प्रोडक्ट लेने मतलब एक फैक्टर लेने के लिए, फिर एक फैक्टर से हमने एवरेज फैक्टर निकाला टू गेट अल्टीमेटली आवर वैल्यूज। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईयर 3। अब आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करेंगे, सेम जो वैल्यू आ रही है माइनस मीन वैल्यू का स्क्वायर। तो जो भी हमारे पास वैल्यूज आई हैं, लेकिन ये तो अभी एक वैल्यू है, अब मेरे को मीन निकालने के लिए इस वैल्यू का बेसिकली हमने एवरेज लिया। सो C3 माइनस एवरेज ऑफ वैल्यू का होल स्क्वायर। सिर्फ 100 तक ही लेने मतलब 102 तक यहाँ पर जा रहा है, वो ही लेना है आपने। इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया है, रिक्वायरमेंट नहीं। सो सेम वही लॉजिक लगाया हमने, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया। अब देखो वेरिएंस कैसे निकालेंगे हम। वेरिएंस ये थोड़ी ना है, ये तो हमारे पास बेसिकली अभी भी वेरिएंस नहीं आया है, ये तो हमने एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाला है। तो अब वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट अटैच्ड है, तो जब वेरिएंस निकालेंगे तो 20,000 स्क्वायर इनटू सम ऑफ ऑल दिस डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो 20,000 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मतलब क्या फॉर्मूला होता है आपका वेरिएंस का, अगर कांस्टेंट अटैच्ड है तो सी स्क्वायर इंटू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट। गाइस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आज ये पहली क्लास है आप लोगों की, और मेरा आज की क्लास में अभी यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है कि मैं आपसे क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट करवाऊं। अभी क्या मेरा पॉइंट है कि जो बेसिक चीजें हैं वो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो हम इस तरीके से एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं, वेरिएंस निकालना है तो हम एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे, फिर अगर 100 वैल्यूज है तो उसको मुझे डिवाइड बाय n माइनस 1 करना पड़ेगा, कांस्टेंट अटैच्ड है तो उसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ये सबसे सही अप्रोच होती है अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर आप पहला क्वेश्चन ही खुद से अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दोगे ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बिल्डअप होता। तो मैं हमेशा जब भी प्रैक्टिकल की क्लासेस करवाती हूँ, पहली 2-3 क्लासेस में आई ऑलवेज ट्राई टू मेक स्टूडेंट्स कंफर्टेबल बाय शोइंग देम सॉल्यूशन upfront and just telling ki how they have performed in the solution, and then ultimately from 3rd 4th class onwards we start giving questions upfront, क्योंकि उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका होता है, आपको एटलीस्ट समझ आना स्टार्ट हो चुका है कि कर क्या रहे। तो अब नेक्स्ट टाइम कोई एक्सपेक्टेड रिटर्न का क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन होता है, यूटिलिटी निकालने का क्वेश्चन आता है, तो आपको क्लियर है कि आपको क्या करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। So just we are supposed to do the first 5 parts, first 6 parts चलो कर लेते हैं। So एक बार just quickly give a read to first 6 parts. So you have been provided with 100 simulations of a random variable representing annual investment returns for the next 5 years. The investment returns are independent and identically distributed, and distribution is normal with mu 5%, sigma 2%. Calculate the mean and standard deviation of the investment returns separately for each of the 5 years across 100 simulations. Comment on how your answer to part 1 compares to the statistical distribution of the returns. An investor invests a single amount of 1000 at time 0. Calculate the value of investment at time 0, 1, 2, 3, 4 and 5 for each of the 100 simulations. Calculate the following for investment value at time 0, 1, 2, 3, 4, 5. Minimum 25th percentile, medium 75th percentile, maximum. Plot your results from part 4 on a suitable chart. Calculate mean and standard deviation of the value of investment at time 5 using the simulations. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या वैल्यूज गिवन है। अभी आपके पास वैल्यूज गिवन है।
So you have been provided with 100 simulations of a random variable representing annual investment returns for the next 5 years. Investment returns are independent and identically distributed, and distribution is normal with mu as 5% and sigma as 2%. तो ये सिमुलेशंस हैं और ये कॉरेस्पॉन्डिंग आपको 5 सालों के रिटर्न उसने दिए. कह रहा है कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न सेपरेटली फॉर ईच ऑफ द 5 years अक्रॉस 100 सिमुलेशंस. ये और इजी है क्योंकि सिर्फ सेपरेट कैलकुलेशन करनी है. ये हमें दिया हुआ है. मैं आपसे मीन रिटर्न अगर पूछूं तो कैसे निकालोगे? सिंपल एवरेज, हर एक साल का एवरेज ले लो, दैट विल कीप ऑन गिविंग यू योर मीन रिटर्न. सो एवरेज ऑफ फर्स्ट ईयर, एवरेज ऑफ सेकंड ईयर, एवरेज ऑफ थर्ड ईयर, एवरेज ऑफ फोर्थ ईयर, एवरेज ऑफ फिफ्थ ईयर. और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना है? जैसे हमने पहले सीखा है, ये अगर xi है तो हर एक xi के कॉरेस्पॉन्डिंग xi माइनस मीन का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर मीन कितना है? 4.99. तो आपका एक कॉलम बनना चाहिए 3.34 माइनस 4.99 का होल स्क्वायर. क्लियर? सो ड्रैग इट. नेक्स्ट देखो 4.61 माइनस 4.79 का होल स्क्वायर. नेक्स्ट 5.23 माइनस 5.53 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन. अब मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए बेसिकली पहले इसका सम लेना है और फिर इस मतलब बेसिकली इसकी एवरेज लेकर स्क्वायर रूट निकालना. जब हमने एवरेज ले ली तो ऑटोमेटिकली वो डिनोमिनेटर से उसने मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस वाज इजी क्वेश्चन क्योंकि बस इसमें आज तक जो अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस करे हैं उसमें वो एक रिटर्न निकालने के लिए बोल रहे हैं. इसमें हर एक साल के लिए हमें और मीन रिटर्न और स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए तो ये और ज्यादा इजी होगा. तो जब आपके पास 100 सिमुलेशंस है, 5 इयर्स है और हर एक साल के लिए अलग अलग वैल्यूज गिवन है, तो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द मीन वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. नेक्स्ट पार्ट देखो, कमेंट ऑन हाउ योर आंसर टू पार्ट 1 कंपेयर्स टू स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अब स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? उसने कहा नॉर्मल है विद म्यू 5% एंड सिग्मा एस 2%. तो म्यू कितना होना चाहिए? बेसिकली 5% और सिग्मा होना चाहिए 2%. तो म्यू अगर मैं देखूं तो रफली 5 के बराबर ही आ रहा है, सिग्मा भी रफली 2 के बराबर ही आ रहा है, बस थोड़ी बहुत डेविएशन है और इसको बस आपने 2-3 लाइंस में एक्सप्लेन करना. Means are similar but not the same for each of the 5 years. Standard deviations are similar but not the same for each of the 5 years. We expect the mean and standard deviation to be 5% and 2%. Calculated values are close to these values. They are not the same as the simulations are random. If there were a greater number of simulations, we would expect calculated values to be closer to expected values. We can't say for sure if distribution is normal based on only checking the first two movements. इस तरीके से आपने कमेंट कर दिया कि ऑल्दो सेम है बट स्टिल थोड़ी बहुत डेविएशन है. तो जितनी ज्यादा हम सिमुलेशन करते हैं उतनी डेविएशन कम होती रहती है बिकॉज उतना आपका एवरेज ज्यादा बढ़ता रहता है. तो अगर हमने 1000 सिमुलेशन हमारे पास होती तो हो सकता है ये 5% और 2% के बराबर आ जाता. बट अभी क्योंकि डेविएशन आ रही है तो पूरा कमेंट नहीं कर सकते कि नॉर्मल है या नहीं. इसके आपको 5 नंबर मिल रहे हैं. नेक्स्ट देखो, इन्वेस्टर इन्वेस्ट अ सिंगल अमाउंट ऑफ 1000 एट टाइम 0. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट टाइम 0 1 फॉर ईच ऑफ द 100 सिमुलेशंस. अब ये सेम वही है जो अभी हम कर चुके हैं. टाइम 0 पे अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो 1000 ही रहेगी टाइम 0 पे. टाइम 1 पे वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? एवरेज जो हमने निकाल, जो हमें बेसिकली हमारे पास है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस दिस. एवरेज वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला उसने. उसने बोला है व्हाट विल बी द वैल्यू एट टाइम 1 ऑफ 1000 इन्वेस्टेड एट टाइम 0 ऑफ 100 सिमुलेशंस. मतलब टाइम 1 पे आपको 100 वैल्यूज मुझे देनी. तो एक वैल्यू देनी होती तो मेरे पास जो वैल्यूज गिवन थी मैं उसका एवरेज निकाल के मुझे सिर्फ एवरेज से मल्टीप्लाई करना था.
क्योंकि मुझे 100 वैल्यूज देनी है तो मैंने एक एक वैल्यू को बस मल्टीप्लाई कर दिया उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वहां से। तो 2 पे निकालने के लिए 1033 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस d6, बेसिकली 2 का जो रिटर्न आ रहा है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट है कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर द इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट टाइम 0, 1, 2, 3, 4, 5। मिनिमम निकालना है, 25 परसेंटाइल निकालना है, मीडियन निकालना है, 75 परसेंटाइल निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये हमारे पास वैल्यूज आ रही है, हर एक ईयर में मिनिमम निकाल लिया, फॉर्मूला लगा दिया, मैक्सिमम निकाल लिया, फॉर्मूला लगा दिया, मीडियन निकालने के लिए मीडियन का फॉर्मूला निकाल दिया। ठीक है, अब इसको ध्यान रखो, 25 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल हम लोग कैसे निकालते हैं। 25 परसेंटाइल या 75 परसेंटाइल, जिस भी वैल्यू पे आपको परसेंटाइल निकालना है उसका फॉर्मूला बस हमें ये लगाना है परसेंटाइल डॉट INC, और अपने वहां पे कितना कौन सा परसेंटाइल निकालना है वो आपने वहां पे डाल दी। सो percentile.inc अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो यू कैन सी इट रिटर्न्स द kth percentile of values in a range where k is in the range of 0, 1 and so on. So 25th percentile चाहिए तो percentile.inc एरिया उठाओ कॉमा 0.25, 75th percentile चाहिए तो 0.75। लास्ट पार्ट कह रहा है प्लॉट योर रिजल्ट्स ऑन अ सूटेबल चार्ट। तो ये मेरे पास वैल्यूज आई हैं, बस इसका हमने चार्ट बना देना। तो ये वैल्यूज थी, ये ऐसे हमारा चार्ट बन गया। 5 टाइम इंटरवल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिनिमम वैल्यू है, क्या मैक्सिमम वैल्यू है, क्या मीडियन है, क्या 75 परसेंटाइल है, क्या 25 परसेंटाइल। तो अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, यू कैन सी एक ही चीज, एक्सपेक्टेड वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, कमेंटिंग, चार्ट बनाना, बस यही है। बस आपको तरीके क्वेश्चन के पूछने के अलग अलग। तो अभी मैंने आपको बहुत सारे तरीके सिखाए हैं आज की क्लास में। एट टाइम्स एक वैल्यू गिवन है तो हमें मीन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है, सिमुलेशन 100 गिवन है, एक ईयर में गिवन है तो कैसे निकालना है, 100 सिमुलेशन स्प्रेड ओवर मल्टीपल ईयर्स तो एक वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालना है, 100 सिमुलेशन स्प्रेड ओवर 5 ईयर्स बट हर एक ईयर की डिफरेंट वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालना है। ठीक है, सो विद दिस वी रैप अप फॉर द डे। अब जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, अब आप क्या करो, आज की क्लास में हमने सिर्फ ओवरलुक किया क्वेश्चंस को। अब आप अपने 2-3 क्वेश्चंस उठाओ रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स एंड डू दैट क्वेश्चंस ऑन योर ओन। इफ यू वांट टू रिवाइज टुडेज क्लास, वीडियो विल बी अपलोडेड। एक बार वो क्वेश्चंस करने से पहले दोबारा से वीडियो देख लो, ताकि आपको बस अप्रोच एक बार दोबारा से आपके ध्यान में रह जाए कि ये अप्रोच है, और इसके आपके पास नोट्स रेडी रखो कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये अप्रोच फॉलो करनी है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये अप्रोच फॉलो करनी है। ठीक है, ओके देन विद दिस वी रैप अप फॉर द डे। थैंक यू।